আজি আমাৰ যোনটো প্ৰেছমিটটো হ'ল যে আমাৰ যোনটো যাত্ৰা আমি লঞ্চ কৰিব ওলাইছোঁ, জাতি বচাওক মাটি বচাওক যাত্ৰা। এই যাত্ৰাটো আমি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আমি কেইটামান পইণ্টছ লৈ আমি অসমৰ মানুহৰ মাজত যাব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ মাজত যাব বিচাৰিছোঁ। যেনেকুৱা আমি ফাৰ্ষ্ট চবতকৈ ডাঙৰ পইণ্ট হ'ল আজি আমি ইউথ কংগ্ৰেছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যিহেতু আমি ইউথৰ টপিকৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এজন যুৱক হিচাপে এটা বস্তু ক'ব লাগিব যে এই যে বিজেপি চৰকাৰে চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰি মটৰ দোকান খুলি আছে, এইটোৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ আৰু আমি এইখিনি কথা লৈ আমি ৰাইজৰ মাজত যাম। দ্বিতীয়তে, চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে যোনটো বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে ফুলফিল নহ'ল। আজি দুটা টাৰ্ম বিজেপি চৰকাৰ আহিলে অসমত, তাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি ফুলফিল নহ'ল। তাৰপিছত ইলেকশ্যনৰ মেনিফেষ্টো হিচাপে আমি বেলেগ কথা কোৱা নাই, আমি বিজেপিৰ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোৰ কথা কৈ আছো। বিজেপিৰ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোত কোৱা আছিলে যে ফ্লাডৰ পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন কৰিব, কিন্তু আজিলৈ ফ্লাডৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন হোৱা নাই। আগতে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট থাকোঁতে অসমৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ আছিলে, স্পেচিয়েল ষ্টেটাছৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰা ফাণ্ডো পাইছিলোঁ। ফ্লাড টেকেল কৰিবৰ কাৰণে আমাক ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন, আৰু এই এক্সট্ৰা ফাণ্ডৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি আমি ফ্লাড টেকেল কৰিব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত এই যোনটো স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ আহি অসমৰ কাৰণে যোনটো স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে, এই স্পেচিয়েল ষ্টেটাছটো কাটিলে। আৰু স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ কাটিলে তাৰ উপৰি যোনটো ফ্লাডৰ কাৰণে যোনখিনি বেচিক ফাণ্ড আহে, সেই বেচিক ফাণ্ডো কিমান বছৰৰ পৰা ৰিলিজ কৰা নাই। তাৰে পাছত আমাৰ যোনটো অসমৰ যোনটো পৰিস্থিতি, আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলো একেলগে মিলি আমি ইমান বছৰৰ পৰা একেলগে শান্তিত আছো, কিন্তু এই চৰকাৰ অহাৰ পাছত নিজৰ লাভৰ কাৰণে, অকল নিজৰ লাভৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে এই যোনটো কমিউনেল এটা চিষ্টেম ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কমিউনেল এটা বাতাবৰণ যোনটো পৰিৱেশ এটা কৰিছে, এই পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে আমি যুৱক হিচাপে আমি ওলাই আহিছোঁ। আৰু আমি সকলো পইণ্টছ লৈ আমি ৰাইজৰ মাজত যাম, আৰু তাৰ পাছতো আমি ৰাইজৰ পৰা আৰু ইছ্যুজ কি আছে, কি কথা আমি কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে আমি কি কাম আৰু কৰিব লাগিব, এইখিনি সকলো কথা লৈ আমি ৰাইজৰ মাজত যাম। আমি এভৰি ডে আমাৰ যাত্ৰা চলিব, আমি 10 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰ আমি খোজকাঢ়িম। তাৰপিছত আমাৰ যোনকেইজন লিডাৰশ্বিপ আহিব, আমাৰ লিডাৰশ্বিপ ডেইলি কোনো হোটেল ইউজ নকৰে, মানুহ আমাৰ কৰ্মীৰ ঘৰত থাকিব, কৰ্মীৰ ঘৰত থাকি আমাৰ কৰ্মীৰ কিমান সমস্যা হৈ আছে, এই সমস্যাৰ ওপৰতো কথাবোৰ পাতিব, শিকিব ট্ৰাই কৰিব। আৰু এইখিনি সকলো কথা লৈ আমি আমাৰ যোনটো মেনিফেষ্টো হ'ব, কংগ্ৰেছৰ যোনটো মেনিফেষ্টো হ'ব, এই মেনিফেষ্টোত আমি যুৱ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি ৰাইজৰ পৰা যিমানখিনি আমি এডভাইচ পাম, যিমানখিনি আমি পইণ্টছ পাম, আটাইকেইটা পইণ্টছ আমি লৈ আমি হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত দিম, আমি APCCৰ ওচৰত দিম, যাতে আমি কংগ্ৰেছে একেলগে ৰাইজৰ সকলো সমস্যা লৈ কেনেকুৱা আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সেইটো লৈ আমি এই যাত্ৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমাৰ লগত অল ইণ্ডিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে মিতেন্দ্ৰ দৰ্শন সিংজী, তেওঁ আহিছে, তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আহিছে, তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। তেওঁ আজি নিজৰ নিউ ইয়াৰ এৰি আজি অসম আহি পাইছে। চ' এইটো ক'ব লাগিব যে আমাৰ সকলো মানুহে বহুত কষ্ট কৰি আছে এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ, এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলাই যাবলৈ, আৰু একৰ্ডিংলি আজি মিতেন্দ্ৰজীও আহিছে, তেওঁ কথাখিনি ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। কালিৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, কালি ধেমাজি হ'ব, তাৰপিছত লখিমপুৰ, তাৰপিছত মাজুলী, তাৰপিছত যোৰহাট, তাৰপিছত শিৱসাগৰ, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়, তাৰপিছত তিনিচুকীয়া, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ বিহু হ'ব, এণ্ডিংটো হ'ব বিহু চৰাইদেউত আমাৰ ইউথ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বিহু এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। তাতে ফাৰ্ষ্ট ফেজ আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰি, তাৰপিছত বিহু আছে, বিহুৰ টাইমত আমাৰ বন্ধ থাকিব। वर्ष की शुभकामनाएं सभी भाई जितने भी मीडिया के आए हुए हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य इस यात्रा का हमारे आसाम के यूथ के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथी जीशान जी और समस्त टीम, एक ही उद्देश्य है। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा, जैसे कि हमारे लीडर ने कहा, हमारे उदय भान जी और मनीष शर्मा जी ने भी कहा कि मुख्य उद्देश्य आसाम की यूथ कांग्रेस का होना चाहिए कि किस तरीके से हम जमीन पर लोगों को बता सकें कि भाजपा ने पिछले 10 साल में जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, वो सपने युवाओं के हों, यहाँ के किसानों के लिए हो, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो। क्योंकि जब मैंने आसाम आके देखा और समझा कि यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है,
जो आसाम में उद्योगपति हैं उनको मुनाफे नहीं दे रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार मुनाफे दे रही है अडानी अंबानी जी को। तो सवाल यह है कि आसाम के जो रहने वाले लोग हैं, जो आसामीज हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनके युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो अपनी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं आज, तो उनका हक क्यों नहीं सरकार दे रही है? सारा हक, वो जो जमीन जहां 1 रुपए में कभी आपको आम मिलता है क्या? 1 रुपए में कोई सब्जी मिलती है क्या? पर आसाम के अंदर 1 रुपए में 99 एकड़ की जमीन जरूर लीज कर दी जाती है। ये आपके मामा मामी कर रहे हैं। तो जब इस प्रदेश के अंदर पूरी सत्ता अगर हम ऐसे उद्योगपति को दे देंगे, तो जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनको क्या मिलेगा? तो हमारी लड़ाई उन उद्योगपति के लिए है जो यहाँ के रहने वाले हैं। हमारी लड़ाई उन नौजवानों के लिए है। जब स्कूल और एजुकेशन की बात आती है तो देने थे सरकारी स्कूल, देने थे अस्पताल, दिया क्या? वाइन शॉप। तो सवाल यह है कि आसाम के युवाओं को किस दिशा में डाला जा रहा है? आसाम के युवाओं को यहाँ विकसित किया जा रहा है? आसाम के युवाओं को यहाँ रोजगार दिया जा रहा है? तो यहां तो देखा जाए तो सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं। तो इस यात्रा में हम धेमाजी से लेके तीनसुकिया तक, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, जो जो विचार हैं, जो जो सोच है इस यात्रा में लोगों को बताने के, वो कार्य यूथ कांग्रेस करेगी। वो क्या लखीमपुर की यूथ कांग्रेस करेगी, वो डिब्रूगढ़ की करेगी, शिवसागर की करेगी, जोरहट की करेगी, तीनसुकिया की करेगी। तो हमारा प्रयास है मिलके एक नई आवाज, एक बुलंद आवाज, जाति बचाओ माटी बचाओ, ये हमारी एक सोच है। जब बात भाजपा की आती है, अब आसाम जैसे प्रदेश में जहां कोई जाति मुद्दा नहीं हुआ करता था, उस जाति को भी मुद्दा बना दिया, ये भाजपा की सोच है। जिस मिट्टी के अंदर लोगों को, मैं कहूं, उपज दिया जाता था, रोजगार दिया जाता था, लोग दूर दूर से यहां आते थे, यहां तो सब कुछ सिंडिकेट के नाम कर दिया है, सिंडिकेट को बेच दिया गया है। यहां पर रेत सिंडिकेट को दे दी गई है, यहां पर आपका सुपारी का काम सिंडिकेट को दे दिया। चल क्या रहा है? कुछ लोगों के द्वारा यहाँ के भविष्य को, यहाँ के लोगों को उनका भविष्य, मैं कहूं, दांव पे लगाया जा रहा है। और मुख्य बात, नौजवान नौजवान नौजवान, आसाम के नौजवान को लेके भाजपा क्या कर रही है? चलिए, महिलाओं के अकाउंट में पैसे डलवाना अच्छी बात है, लेकिन उन महिलाओं को रोजगार दीजिए ना, आप उनको काम दीजिए ना, यहां उद्योग लेकर आइए ना, आप उन लोगों को स्किल्ड बनाइए ना। स्किल के लिए क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लोगों को वो आदतें डाल रहे हैं जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां, जो वो पढ़ाई कर सकते हैं, जो वो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते। आसाम इज द मोस्ट टैलेंटेड लैंड, मोस्ट फर्टाइल लैंड, और आसाम का जो युवा है वो टैलेंट का भरपूर है। वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, आज आसाम का युवा आपको पूरे देश में मिलेगा, भारत देश में। तो मेरा सवाल यह है कि उनके लिए सोचने का काम आसाम के यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जुबेर जी, उनकी ये सोच है, उनकी एक नेक सोच है कि आने वाला समय यहाँ के युवाओं को उनका हक मिले, आसाम के लोगों को उनका हक मिले, और सब समाज यहाँ रहे, मिलके रहे। पर जो यहाँ के निवासी हैं उनको आप इग्नोर मत करिए, ये सोच है। इसी सोच को हम आगे बढ़ाने का इस काम कर रहे हैं यात्रा में। और मिलके, जो राहुल जी की एक सोच है कि संविधान की लड़ाई लड़नी है, हम संविधान की लड़ाई लड़ने निकले हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ने निकले हैं। और हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक नौजवानों को, यहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ मामा मामी सरकार तय नहीं करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ की सरकार तय करेंगे।